ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਲਾਹੀ ਬੋਲ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਇੱਕ ਗਾਇਕੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਗਾਇਕੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਬਜ਼ਾਰੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰੀ ਗਾਇਕੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਏ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰੀ ਗਾਇਕੀ। ਹੁਣ ਗਾਇਕੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗਾਇਕੀ। ਇਹ ਬਜ਼ਾਰੀ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਬਾਰੀ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਣੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਣੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਣੇ। ਤੋ ਇਹ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਬਗੈਰ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਜਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਗ ਸਕਦਾ। ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸਮਾਗਮ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਿਲਾਸੋਫੀਕਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ। ਜੇ ਤੇਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੀਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੱਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗੇਗਾ। ਜੇ ਦੀਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗੇਗਾ, ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੀਵਾ ਕਿਵੇਂ ਜਗੇਗਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਦਾ ਅਧੂਰਾ। ਤੋ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਦੀਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੱਤ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਤ ਤੇਲ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਬਾਤੀ ਦੀਪਕ ਦੇਹ
ये साडा जो शरीर है ये दीवा है, हुण इस दे अंदर जोत जगानी है, जोत जगानी। तो साहिब ने जुगती भी दसी है, उगती भी दसी है। भाई साहब जी गुरनाम सिंह जी जो जिस पंक्ति नूं लै के कीर्तन कर रहे सी, विच दुनिया सेव कमाई तां दरगे बैसन पाई। हुण सेवा किस दी करनी है? अक्सर संत सिंह मशकीन एक गल कहंदे सी कि सेवा अपने तो कमज़ोर दी होंदी है, वड्डे दी नहीं होंदी। हकीकत है। माँ बच्चे की सेवा करती पई है क्योंकि बच्चा कमज़ोर है, पिता बच्चे की सेवा करता पिया है क्योंकि बच्चा कमज़ोर है। तो सेवा कमज़ोर दी होंदी है, अपने तो वड्डे ते बलवान की सेवा नहीं होंदी। ते हुण गुरु की सेवा की साहिब कहते ने, गुरु की सेवा गुरु भगत है, या फिर क्या गुरु की सेवा गुरु शब्द विचार है। शब्द दी विचार गुरु दे बोल सुनने और उन्होंने ते पहरा देना, अमल करना, ये दीवा तां जगदा है, तां जगदा है। पोथी पुराण कमाईए, धन गुरु ग्रंथ साहिब के जो बोल ने, इन्हों सुन के ते फिर इन्हों जीवन विच उतारना है, तो पहरा देना है, तो इन्हों के मुताबिक चलना भी है, चलना भी। पर जे किधरे असी चले नहीं हैं, गुरुद्वारे रोज़ आते रहे, एक वो भी मनुख है जो कदे गुरुद्वारे नहीं आता, एक वो भी मनुख है जो रोज़ गुरुद्वारे आता है, रोज़ गुरुद्वारे। एक वो मनुख है जिहड़ा कदे गुरु के बोल नहीं सुनता, एक वो भी मनुख है जो गुरुद्वारे भी रोज़ आउंदा है, गुरु के बोल भी सुनता है। तो गुस्ताखी माफ़ मैनू एक गल कहन देना, जिहड़ा कदे गुरु घर विच नहीं आया, कदे बोल उसने सुने नहीं, ना वो तुरिया ना असी तुरे, पहुँचे किते भी नहीं, किते भी नहीं। क्योंकि असी भी सुनते रहे केवल तो केवल, पर तुरे नहीं असी। उसने बोल सुने भी नहीं तो वो तुरिया भी नहीं, तो ना वो किधरे पहुँचिया ना असी किधरे पहुँचे। और हकीकत है, एक विद्वान पुरुष की कहता है, कहते ने धार्मिक दुनिया दे विच नास्तिकता का जन्म किस तरह होया, यदा अपराधी कौन है? आप जी सारे आलम फाजल याफ्ता बैठे हो, विद्वान बैठे हो, पढ़े लिखे बैठे हो। जदों 40-40 साल बतीत हो जान, रोज़ गुरुद्वारे आउंदे आ, 40 साल हो गए ने, पर 40 साल पहला जिथे बैठे सी अजे भी उत्थे ही बैठे हुए, अजे भी उत्थे ही बैठे। जदों असीं बच्चियां नूं कहंदे हां पुत्तर गुरुद्वारे जाया करो, इक्को ही सवाल साडे सामने रखते हैं, बापू तैनूं की मिलिया है, माँ तैनूं की मिलिया है। 40 साल पहला भी तेरे कोल क्रोध सी, अज भी तेरे कोल क्रोध है। 40 साल पहला भी तू झूठ बोलदी सी, अज भी गुस्ताखी माफ झूठ बोलदी है। तो फिर बच्चे दे अंदर नास्तिकता का जन्म होंदा है। इसदा मूल कारण कौन है? असी। जे किधरे आप जी संगत करके कथा कीर्तन सुन के और आप जी अपने घर इस तरह जाओ कि आप जी दे बच्चे नज़र ना आन, बच्चियों दे विच निरंकार नज़र आवे, इसनों कहंदे ने पोथी पुराण कमाईए। फिर कहंदे ने इहदे विच वट्टी चाहिदी है, वट्टी किसदी होवे? कहंदे ने भाव वट्टी इत धन पाईए। जीवन विच डर चाहिदा है, भाव चाहिदा है। आप जी नूं मैं अर्ज करां, आप जी ने कहना ज्ञानी जी जिथे डर होंदा है फिर उत्थे प्रेम किवें होएगा? बापू तो डरीए, गुरु तो डरीए, फिर प्रेम किवें पैदा होएगा? पर इत्थे डर दो किस्म दे होंदे, दो किस्म के डर जिहड़े ने। एक डर वो है जो एक मालिक के प्रति एक गुलाम दा, गुलाम डरदा है मालिक तो, पर उहदे अंदर वैरता बरी होंदी है मालिक दे प्रति। फिर एक पत्नी भी डरदी अपने पति तो। उत्थे धन गुरु रामदास साहिब महाराज कहते हैं, निर्मल भव पाया
हर गुण गाया। ये निर्मल डर है, निर्मल भाव है, भाव चाहिए। इत्थे मैनूं एक छोटी जी गल चेते आ गई, आप जी दे सन्मुख रखा। एक संत पुरुष नूं उहदा सेवक कहंदा है, संत जी जे इजाजत होवे तां मैं कुछ गल आखां। संत जी कहन लगे, जरूर आखो, की कहना चाहते हो। तो वह शिष्य कहता है, संत जी 10 साल गुजर गए ने, गल नहीं बनी हाले। रोज़ कथा सुनदा, रोज़ कीर्तन सुनदा, पर गल नहीं बनी। चंगा होवेगा मैनू इजाजत दवो, मैं अपने घर जाऊँ। संत जी कहन लगे, फिर एक काम करो, शाम का वक्त हो गया है, जाते जाते बाहर गैलरी दे विच दीवा पिया है, उसनूं जगांदे जाओ। बाकी मैं आप जी पासों खेमा मंगना, 10 साल का वक्त हो गया, मैं तैनूं कुछ दे नहीं पाया, मैं खेमा मंगना, मैं माफ़ी मंगदा। चंगा, वो सेवक बाहर जाता है तो दीवे नूं जगाने की कोशिश करता है। ध्यान दे नाल सुनना, मैं की अर्ज कर रहा। दीवे नूं जगाने की कोशिश करता है, दीवा नहीं जगदा, नहीं जगदा। तो वो सेवक वापस आके कहता है, संत जी दीवा नहीं जगेगा, बहुत कोशिश की है, पर वो दिया सलाई बुझ जाती है, पर वो दिया नहीं जगदा। क्यों? क्योंकि दीवे दे विच तेल तो है, वट तो है, पर उस तेल दे विच पानी भी भरिया पिया है। पानी मैं वार वार दिया सलाई जगाई है, पर वो दिया सलाई बुझ जाती है, दीवा नहीं जग रहा। संत जी कहन लगे, बस यही गाथा तेरी भी है, यही गाथा। मैं रोज़ निरंकार की गल सुना के, कथा सुना के, कीर्तन सुना के मैं तेरे जीवन का दीवा तैयार करदा कि मैं कल दीवा जगाना है। तू बाहर जाके फिर तेल विच पानी पा के आ जाता है, मिट्टी पा के आ जाता है, फिर ये दीवा किवें जगेगा, किवें जगेगा। असी कीर्तन कथा सुन के जदों असी बाहर जाते हाँ तो उहदे विच असी तेल दे विच पानी मिला देंदे हाँ। भाव किधरे क्रोध की लोड़ पई, क्रोध भी किया, किधरे झूठ भी बोलना पिया, झूठ भी बोलते हाँ, ईरखा के बोल भी बोलते हाँ, निंदा भी करते हाँ। ये तेल विच आप जी पानी मिला के आ गए, सारी जिंदगी दीवा नहीं जगेगा। इसे करके मजबूरन कबीर साहब नूं कहना पिया, माथे तिलक हथ माला बाना, लोकन राम खिलौना जाना। बस इस तो वध नहीं। पर हाँ, जिसने शब्द की कमाई कर ली, जिसने नाम जप लिया, जप लिया। एक ऐसी देवी जिहदा नाम सी सबराई, सबराई। एक ऐसा पुरुष जिहदा नाम सी नायक दासा जी। दोवें पति पत्नी सन, पति पत्नी। जिथे आप जी दे जीवन दे विच धन की लालसा सी, धन चाहिदा है, उत्थे धर्म भी आप जी दे अंदर जो है उसने चाव पैदा किया होया सी। क्योंकि धन भी चाहिए है तो धर्म भी चाहिए है, पदार्थ चाहिए ने तो परमात्मा भी चाहिए है, मकान चाहिए है तो जीवन में परमात्मा भी चाहिए है, दोनों चाहिए ने, दोनों चाहिए। क्योंकि जे धन नहीं है, जीवन की किश्ती नहीं चल सकती, और जे धर्म नहीं है तो आध्यात्मिक किश्ती नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। इसनों मैं थोड़ा जिहा इस तरह उदाहरण देवां कि किश्ती ने सफ़र करना केवल ते केवल दरिया दे विच। जे पानी ना होवे तो किश्ती नहीं चल सकती, किश्ती सड़क ते नहीं चल सकती। किश्ती नूं चलाउण वास्ते पानी चाहिए है, जीवन की किश्ती नूं चलाउण वास्ते धन चाहिए है, धन चाहिए। जे धन नहीं है, जीवन की किश्ती नहीं चल सकती एक कदम भी। जे पानी नहीं है,
बाहर की किश्ती एक कदम भी नहीं चल सकती, एक कदम भी, एक कदम। तो किश्ती सफ़र पानी विच करदी है, पर गुस्ताखी माफ़ ये भी गल मैनू कहन देना, किश्ती डुबदी भी पानी विच ही है, तैरदी भी पानी ते ही है, डुबदी भी पानी दे विच है। मनुख दे जीवन की जिहड़ी किश्ती है वो धन रूपी पानी ते ही चलती है, और कई बारी धन रूपी पानी दे विच ही डुब जाती, डुब जाती। हकीकत है, बहुता धन आ गया, मनुख परमात्मा तो मुख मोड़ लेंदा है। बहुता धन आ गया, मनुख का जीवन अयास बन गया। मनुख दे कोल धन आ गया, मनुख का जीवन दुराचारी बन गया। गुस्ताखी माफ, बहुता धन आ। तो मैं अर्ज कर दिया सी, नायक दासा जी ते आप जी की पत्नी सबराई जी, इन्हों के घर जिस बच्चे का जन्म होया उस बच्चे का नाम रखिया बाबा मक्खण शाह। कहते ने उस दिन नायक दासा जी ने कड़ा प्रसाद की देख कराई। मैं थोड़ा जिहा इतिहास साहब जी के सामने रखा। ये जो नायक दासा जी सी, ये भी व्यापारी सी, ते इन्हां दा व्यापार चलदा सी दूर दूर देशां दे विच, ते अफ्रीका दे विच इन्हां दा कारोबार बहुत सी। ते कीनिया दे एक शहर दे विच आप जी ने एक ऐसा स्थान बनाया सी कि जिथे साजो समान आप जी उत्थे रखते सी। बहुत वड्डा व्यापार सी। ते आप जी ने व्यापार शुरू करना अक्टूबर नवंबर तो, ते सफ़र करदियाँ करदियाँ फिर अगस्त सितंबर तक आप जी ने वापस आ जाना। इतिहास लिखता है कि फिर धन गुरु अर्जन देव साहिब के दरबार विच पहुँचना, दरबार साहिब हरमंदिर साहिब। ये मैं जिक्र कर रहा हाँ नायक दासा जी, आप जी की पत्नी सबराई अते आप जी का बच्चा मक्खण शाह जी। उत्थे सेवा करनी, नमस्कार करनी, फिर आप जी ने समय के मुताबिक अपने घर जाना। वक्त की धारा इस तरह वगदी रही। तो धन गुरु हरगोबिंद साहिब के घर भी सेवा की, गुरु हरराय साहिब के घर की भी सेवा की, गुरु हरकृष्ण साहिब के घर की भी सेवा की। बहुत ही शरधा ते बहुत ही प्यार। समय की धारा वगदी गई। कहते ने जदों 15 साल की बाबा मक्खण शाह की उम्र सी, आप जी ने पिता के नाल ही कारोबार दे विच समूलियत हासिल की। 15 साल की पिता नाल जांदे ने। ये जो लबाना शब्द है, इसका जो अखरी अर्थ है, इसका जो मूल शब्द है, ये बनिया है लुहान तो, लूण। क्योंकि पाकिस्तान दे विच आप जी नूं भी खबर है कि लाहौरी सेंधा नमक बहुत मशहूर है। तो आप जी यही व्यापार करते सी। देशां विदेशां दे विच आप जी ने व्यापार करना। 15 साल की उम्र दे विच ही आप जी ने गुरुदेव पिता का साथ शुरू किया है। फिर मैं अर्ज करा कि जदों भी साजो समान लैके दूजे मुल्क विच जाना, फिर उत्थों साजो समान खरीदना, फिर दूजे मुल्क विच बेचना। इसनों कहंदे ने वणजारा भी कहंदे ने, व्यापारी भी कहंदे ने। मुनाफा खटना, वणजारा व्यापारी। और धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सानू भी वणजारा आखिया है। वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ है नाल। जैसी निभ है नाल। गुस्ताखी माफ, जे गौर मुताला करिए साडे कोल केवल ते केवल नाम की वस्तु जिहड़ी है उसे ने साडे नाल अखीर तक जाना है। बाकी तो सब कुछ इत्थे ही रह जाना है। सब कुछ आप जी रोज़ देखते हो, रोज़ देखते हो। मैनू किसी ने एक सवाल किया छोटा जिहा, कहने लगे ज्ञानी जी 7 अजूबे ने इस दुनिया दे विच, कोई 8वां अजूबा भी है?
मैं क्या है? कहने लगे वो 8वां अजूबा किहड़ा है? मैं क्या इसनों समझना बड़ा औखा है, बड़ा औखा है। 8वां अजूबा ये है कि हर रोज़ मनुख मनुख नूं मरदे हुए देखता है, हर रोज़। और ये भी देखता है कि सब कुछ छड्ड के जा रहा है, ये भी देखता है। दोवें हथ बाहर ने, ये भी देखता है, ये भी देखता है। ये सब कुछ देखने तो बाद भी अंदर एक विचारधारा चलती है कि बेचारा मर गया, मैं थोड़ी मरांगा, फिर जा इन्नी छेती थोड़ी मरांगा। जदों के बाद विच खबर मिल जाती है, भाई साहब जी अनाउंसमेंट करो फलाना बंदा तो चला गया। कल ही तो देखा सी इसनों, अज की हो गया? साहिब कहते हैं हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मौत न जानी। तो मुक्तसर में अर्ज करा, बाबा मक्खण शाह लुबाणा आप जी की जिहड़ी पत्नी जिहदा नाम सी सोलजई देवी, आप जी दे पुत्र सन खुशाल चंद, चंदू राम, लाल चंद, ये आप जी दे पुत्र सन। ते पुत्र भी आप जी दे नाल ही कारोबार दे विच पिता दा हथ बनाते सी। जदों अफ्रीका तो आप जी का बेड़ा वापस आ रहा सी, कहते ने ये बेड़े चलते सी हवावां दे रुख के मुताबिक, ते एक स्थान ते आके बेड़ा अटक जाता है, अटक जाता। आप जी ने धन गुरु नानक साहिब के चरणों में अरदास की, महाराज रहमत करें, रहमत करें। क्योंकि ये जो अरदास शब्द है, इहदा एक एक अखर जिहड़ा बहुत गहरे अर्थ रखता है, बहुत गहरे अर्थ। मेरे अजीत सिंह साहिब जी, मनोहर सिंह जी, गुरिंदर सिंह जी आप जी का जत्था, जो कि बहुत सियाणे ते सूझवान हैं हर पक्षों, आप जी ने फिर कीर्तन श्रवण कराना है। ये जो अरदास है, अरदास का जो पहला अखर है ऐड़ा, ये कुछ ना कुछ बोल रहा है। आप जी कह देंगे हो ज्ञानी जी अरदास करो, पर जे किधर असी डीप विच जाइए, ऐड़ा अखर की कहंदा पिया है, रर्रा अखर की कहंदा पिया है, दद्दा अखर की कहंदा पिया है, सस्सा अखर की कहंदा पिया है। जे किधरे गौर मुताला करिए, ऐड़ा अखर कहंदा है अंतर जामी पुरख विधाते, शरदा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे, मौक कर संतन की धूरे। ऐड़ा अखर। रर्रा अखर कहंदा पिया है राखा एक हमारा स्वामी, इक्को ही है जो राखा है, इक्को ही है रखवाला है। दद्दा अखर कहंदा पिया है दातार, तू दाता है, तू दातार है, तू मालिक है। और सस्सा अखर कहंदा पिया तू सहारा है मेरे जीवन का। ये चारों अखर मिलते ने अरदास शब्द बनता है। बाबा मक्खण शाह जी ने अरदास की, पातशाह जी मेरे ते रहमत कर, मेरे ते कृपा कर। फिर एक गल मैं होर जोड़ देवां, कीती हुई अरदास दे विच शरधा लाजमी है, आस्था लाजमी है। पर हुंदा की है, साडे जीवन विच शरधा भी चलती है तो शंका भी चलती है, दोनों चलते हैं, दोनों चलते हैं। संत सिंह मशकीन एक गल कहंदे सी कि जे किधरे एक कदम शरधा दा होवे, एक कदम शंका दा होवे, एक कदम अगां वल जा रहा होवे, एक कदम पिछां वल जा रहा होवे, ये तो फिर वही खेड है कि मनुख दे शरीर नूं रस्सी लपेटी है, तो एक सिरा उस पासे खिंचदा पिया है, दूजा सिरा उस पासे खिंचदा पिया है। मनुख दा तो फिर बढ़ता ही बन जाना, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं। तो जीवन दे विच एक कदम शरधा दा, एक शंका दा, मनुख किते भी नहीं पहुँचता, किते भी नहीं पहुँचता। जे मनुख दे कोल शरधा है, आस्था है, बाबा मक्खण शाह लुबाणे दी जिहड़ी अरदास सी, उहदे विच शरधा सी, उहदे विच शंका नहीं सी, शरधा।
तो जदों अरदास की, महाराज रहमत करो, ये कारोबार भी तेरा है, ये बेड़ा भी तेरा है, असी भी तेरे हैं, असी भी तेरे हैं। आप जी का बेड़ा पार होया। इत्थे एक छोटा जिहा ख्याल आप जी के सामने रखा, थोड़ा जिहा बरीक विषय है, बरीक बुद्धि नाल समझना। एक गल है कनेडा दी, किसी ने मैनू एक सवाल किया, कहन लगे ज्ञानी जी एक गल दसो मैनू, बाबा मक्खण शाह का बेड़ा गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पार किया, बचाया, मैनू थोड़ी जी शंका लगती है। मैं क्या दसो शंका किवें? कहन लगे गुरु तेग बहादुर साहब जी कित्थे बैठे ने ते मक्खण शाह का बेड़ा कित्थे डुबदा पिया, किवें पहुँचणगे? मैनू ये दसो। मैं उसनूं एक सवाल किया, तू कथा सुनदा है? कहंदा हाँ मैं सुनदा। नाम दसो? कहण लगे मैं फलाणे की कथा सुनदा। मैं कहा थोड़ा जिहा इसनूं समझना। साडा जो शरीर है, शरीर दे विच अंदर 6 शरीर होर ने, 6 शरीर होर ने। बाकायदा हर एक शरीर का नाम है। सानू तो एको ही शरीर की समझ है, साडे कोल एको ही शरीर है, पर नहीं, एक शरीर नहीं है। इस शरीर के अंदर 6 शरीर होर ने। ते मैं इहदा बहुता विस्तार ना करा, 3 शरीरां तक तो सारे असी बराबर हाँ, 3 शरीरां तक। जिहड़ा चौथा शरीर है उसनों कहंदे ने मनस शरीर। आप जी दे विचों अभ्यासी पुरुष बैठे होणगे, मेरी गल नूं पकड़ रहे होणगे जरूर। ये जो मनस शरीर है ये इस तरह सफ़र करता है कि जिवें आप जी सुते पे हो तो ये गुरु घर विच बैठा कीर्तन सुनता पिया है। कई बार इस तरह के ख्याल आते हैं, सपने आते हैं, असी दरबार साहब पहुँच गए, असी हेमकुंड साहब पहुँच गए। ये किहड़ा शरीर सफ़र करता है? मनस शरीर। तो जिहड़े मनस शरीर तो भी उच्चे उठ जाते हैं, जिन्होंने मैं कह देवां पैगंबर, गुरु, पीर, रहबर पुरुष, फिर इन्हां दी चेतना सफ़र करती है और वो चेतना हर थां ते पहुँच जाती है, हर थां ते। इसे करके गालिब ने एक गल आखी सी, जदों गालिब नूं कहा गया तुसीं एक गुरु धारण कर लो किसी मनुख नूं, गालिब कहंदा नहीं, मनुख गुरु नहीं है, शरीर गुरु नहीं है, क्योंकि शरीर हर थां ते नहीं पहुँचेगा। तो गालिब की कहता है कि जे किधरे मैं शरीर नूं गुरु धारण कर लवां तो वह कहता है कि हम जानते हैं, तुम तगाफुल ना करोगे, साडे नाल तुसी धोखा नहीं करोगे, हम जानते हैं तुम तगाफुल ना करोगे, लेकिन हम खाक ना हो जाएंगे तुम तक खबर पहुँचते पहुँचते। और शरीर गुरु होवे, अमेरिका विच बैठा होवे ते मैं इत्थे बैठा होया, वो जदों तक आएगा उदों तक तो मैं खाक हो जावांगा। लेकिन जो शब्द गुरु है, तुम सबनी थाई जिथे हो जाए। तो इस तरह चेतना सफ़र कर दी है। धन गुरु तेग बहादुर साहब ने मक्खण शाह जी का बेड़ा पार किया। आप जी 500 अपने साथियों नूं नाल लैके आंदे ने। आप जी दे पुत्र भी हैं, आप जी की पत्नी भी है, तो आप जी भी ने दिल्ली पहुँचे ने। तो दिल्ली जदों पहुँचे ने, आप जी नूं खबर मिली है कि गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के रसना चों बोल निकले सी बाबा बकाले। आप जी बकाले की धरती ते आ गए। उत्थे आप जी ने की वेख्या कि 22 गुरु बन के बैठे हुए ने नकली। जो असली है वो छिप के बैठा है, जो नकली है वो बाहर बैठे ने। और धार्मिक दुनिया में ऐसा होंदा है जिहड़े हकीकत तक पहुँचे होंदे ने वो छिपण की कोशिश करते हैं, और जिहड़े इस तल ते नहीं पहुँचे वो दिखावा ही बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। जिहड़े हकीकत तक पहुँच जाते हैं, जिहड़े सचखंड तक पहुँच जाते हैं, वो फिर अपने आप को छिपाते हैं, इजार नहीं करते। वो 22 गुरु बन के बैठे ने नकली, जो असली है वो गुफा विच बैठा है।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਔਰ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਤੋ ਤਿਆਗ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਗ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਤੇ ਵਸਤਰ ਪਹੁੰਚਾਣੇ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਆਲਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਆਭੂਸ਼ਣ ਹੋਣ, ਪਰ ਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧੜੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਭਾਈ ਸੇਤੀ ਜਾਲੇ, ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾ, ਨਾਨਕ ਤੈਸੇ ਨਾਲੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਗ ਤੇ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਐਲਾਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਲਾਧੋ ਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਅਮਰ ਕਰ ਗਏ। ਆਪ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।